Lethal genes, concept and consequences. This is the topic from Unit 4 of your syllabus. Lethal genes are mutant genes whose effect on carrier is fatal. It kills the bearer. So lethal gene is a mutant gene. After mutation, normal gene becomes lethal genes, and it is a fatal. Fatal means it kills the bearer. Bearer में possessor. जिस इंडिविजुअल में ये जीन होगा या फिर ये आएगा, तो वो इंडिविजुअल अर्ली एज में, एम्ब्रियोनिक एज में या फिर लेटर एज में उसकी डेथ हो जाएगी. दैट इज कॉल्ड lethal genes. Lethal genes are mutant genes whose effect on carrier is fatal. It kills the bearer in the prenatal or postnatal period prior to sexual maturity. Prenatal, that means before birth. During pregnancy, we can say, when the fetus or that embryo is present in the mother's uterus, that is a prenatal, मतलब जन्म से पहले. और postnatal, after birth डेवलपमेंट जो होती है. सो बट द इंडिविजुअल die before it reaches to sexual maturity. Before it reaches to sexual maturity means reaches to reproductive age. तो उसके पहले उसकी डेथ हो जाएगी. The term lethal means effect severe enough to cause death. Lethal का मीनिंग क्या होता है कि it is severe enough to cause death. Lethal gene may arises by mutation of normal gene. The genes that fails to produce functional essential protein is known as lethal genes. Normal gene जो होगा वो तो functional protein produce करेगा. Normal mRNA पे functional protein. But lethal genes में क्या होगा? Due to mutation नॉर्मल प्रोटीन नहीं प्रोड्यूस होगा, नॉर्मल एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होगा. सो बिकॉज ऑफ दैट द फंक्शनल इसेंशियल प्रोटीन is not produced, failed to produce. The fully dominant lethal allele kills the carrier individual both in homozygous and heterozygous condition. The individuals with a dominant lethal allele die before they can produce progeny. Therefore, dominant mutant genes are removed from the population. अगर कोई जनरेशन में डोमिनेंट म्यूटेशन हो जाता है और कोई इंडिविजुअल में डोमिनेंट म्यूटेशन आ जाता है, तो कुछ एग्जाम्पल ऐसे हैं कि प्रीनेटल स्टेज में ही वो इंडिविजुअल मर जाएगा, या फिर दैट इंडिविजुअल विल डाई बिफोर इट रीचेस टू रिप्रोडक्टिव एज, so as he cannot propagate the dominant lethal gene in next generation. नेक्स्ट जनरेशन में वो जीन नेचर जाने नहीं देगा, उसके पहले ही वो प्रोजेसर को, इंडिविजुअल को डेथ हो जाएगी. एंड दैट्स व्हाई देयरफॉर डोमिनेंट म्यूटेंट जीन्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द पॉपुलेशन. रेसेसिव lethal genes gives phenotypic effects only in homozygous condition. तो रेसेसिव lethal genes जो है, ये डोमिनेंट लीथल में क्या होता है कि दोनों डोमिनेंट होना चाहिए अलील्स, दोनों डोमिनेंट अलील्स, या फिर एक डोमिनेंट हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी वो शो कर सकता है. बट इन रेसेसिव लीथल में दोनों होमोजाइगस कंडीशन में चाहिए. रेसेसिव अलील्स, बोथ द रेसेसिव अलील्स इन होमोजाइगस कंडीशन में होंगे तो एक्सप्रेशन आएगा. So recessive lethal genes gives phenotypic effects only in homozygous condition, kills the carrier only in homozygous condition, no phenotypic effect in heterozygous condition. Heterozygotes are carrier to the disease or that defect. In many cases, the lethal genes become operative at a time when the individual becomes sexually mature. Such genes are called sublethal genes. इसका मतलब हुआ कि
जब तक वो इंडिविजुअल अडल्टहुड या फिर मैच्योर स्टेज तक नहीं पहुंचता है, रिप्रोडक्टिव एज तक नहीं पहुंचता है, तब तक वो इंडिविजुअल मेल और फीमेल नॉर्मल दिखेगा, नॉर्मल रहेगा. बट जैसे ही वो रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचेगा, मीन्स व्हेन इट रीचेस टू 15, एज ऑफ हिज लाइफ, देन दैट lethal genes become operative, active, and that individual possessor will be killed or death will be takes place. So yes, such type of genes are called sublethal genes. Sublethal genes. Gametic lethality prevents the formation of zygote due to the death of gametes. गमेट स्टेज में ही गमेट्स मर जाना, मतलब ओवा एंड स्पर्म, तो दैट इज कॉल्ड गैमेटिक लिथैलिटी. जाइगोटिक लिथैलिटी मतलब ओवा और स्पर्म फर्टिलाइजेशन होकर जाइगोट तो बनेगा, बट जाइगोट विल नॉट डेवलप फर्दर, उसका माइटोटिक डिविजन नहीं होगा और जाइगोट मर जाएगा. इट कॉजेज डेथ ऑफ जाइगोट और एम्ब्रियो ड्यूरिंग सम स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, दैट इज जाइगोटिक लिथैलिटी. ऑटोसोमल लिथैलिटी, दैट मीन्स ऑटोसोमल जीन्स जो होते हैं ऑटोसोम्स, उसमें अगर म्यूटेशन होके इट बिकम्स ए लीथल जीन्स, दैट इज ऑटोसोमल लिथैलिटी. सो दिस इज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस lethal genes. Now we will see some examples, that consequences as per your topic, syllabus topic. Dominant lethal genes in human. Example 1. तो हम क्या देख रहे हैं? डोमिनेंट लीथल देख रहे हैं. पहला ये डोमिनेंट लीथल. एग्जाम्पल 1, हंटिंगटन्स कोरिया. ये डिसीज का और डिसऑर्डर का नाम है, हंटिंगटन्स कोरिया. इसमें क्या होता है? इट इज ए ऑटोसोमल डोमिनेंट लीथल ट्रेट. इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इनवॉलंटरी जर्किंग. इनवॉलंटरी आपको पता होगा, इनवॉलंटरी मीन्स विदाउट आवर कॉन्शियस कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, नॉट इन आवर कंट्रोल. इट एक्ट अगेंस्ट आवर विल, विदाउट आवर विल इट एक्ट्स. जैसे हार्ट मसल इनवॉलंटरीली एक्ट होते रहते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है, दैट इज इनवॉलंटरी. जर्किंग, जर्क, सडन जर्क मूवमेंट जो ना, जर्किंग. So it is characterized by involuntary jerking of the body and progressive degeneration of nervous system. Progressive degeneration of nervous system. The patient of this disease die in the age of 40 or 45. Since the disease occur comparatively late in life, many affected persons have produced progeny. मतलब क्या कि सपोज ये मेल है, हंटिंगटन कोरिया, ये दो अलील्स हैं, एक H, कैपिटल H, दैट इज ए डोमिनेंट जीन, रेसेसिव जीन. डोमिनेंट जीन, रेसेसिव जीन, मेल फीमेल क्रॉस हो गया. सो डोमिनेंट एक इंडिविजुअल में आ गया. कंप्लीट लिथैलिटी. कंप्लीट लिथैलिटी मीन्स इंडिविजुअल कुड नॉट अटेन द रिप्रोडक्टिव एज, उसके पहले ही ये मर जाएगा. देन दिस टू इंडिविजुअल, दे विल बी कैपिटल H, स्मॉल h. These individuals with a Huntington's chorea, dominant lethal in heterozygous condition, जैसे पेरेंट्स हैं इस तरह से ये डोमिनेंट लीथल है, बट ये भी 45 के आगे नहीं जाएंगे, उसके पहले मर जाएंगे. एंड दिस स्मॉल h मीन्स बोथ द रेसेसिव अलील्स. सो यहाँ पे डोमिनेंट अलील है ही नहीं, तो ये इंडिविजुअल नॉर्मल है. इंडिविजुअल विथ होमोजाइगस रेसेसिव जीनोटाइप, सो इट बिकम्स नॉर्मल. इसे हंटिंगटन कोरिया ये डिसऑर्डर नहीं होगा. सेकंड एग्जाम्पल ऑफ डोमिनेंट लीथल जीन्स इन ह्यूमन. सेकंड एग्जाम्पल है एपिलोपिया. एपिलोपिया, इसमें क्या होता है? इट इज ए ऑटोसोमल डोमिनेंट लीथल ट्रेट. ये भी ऑटोसोमल डोमिनेंट है. इट इज ए कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल डिफिशियंसी, ट्यूमर फॉर्मेशन इन ब्रेन एंड अदर ऑर्गन्स, abnormal skin,
person suffering from epilepsy disease die in childhood, but some of them they are sublethal, means they reaches up to the reproductive age, survive and produce progeny. Again same example like Huntington's chorea, male and female, when we cross both the genes dominant, he will not survive, he will not attain the reproductive age. These two they will survive and they will be carrier of this disorder, and this is the normal individual. ये दोनों एग्जाम्पल हुए थे ह्यूमन बीइंग में. एक एनिमल के एग्जाम्पल भी हम देखेंगे. डोमिनेंट लीथल जीन्स एग्जाम्पल इन चिकन. अब चिकन में क्या होता है? इन द चिकन डोमिनेंट जीन सीपी इन हेट्रोजाइगस कंडीशन. सीपी ये एक अलील है जो क्रीपर जीन बोलते हैं इसको, क्रीपर जीन, और ये प्लस साइन मतलब नॉर्मल जीन. सो दिस इज ए कैरियर, क्रीपर कैरियर causes the creeper condition. The creeper condition means the creeper bird have much shortened and deformed legs and wings. A cross of two creeper birds yields of offspring in the ratio of 2 creepers and 1 normal. So यहाँ पे हम क्रॉस देखेंगे. ये क्रीपर है, ये अलील है सीपी एंड नॉर्मल अलील. हियर ऑल्सो क्रीपर अलील, नॉर्मल अलील, दो पेरेंट्स में क्रॉस. नाउ दिस इंडिविजुअल, ये एक इंडिविजुअल ऐसा है इसमें दोनों के दोनों डोमिनेंट लीथल जीन्स आए हैं, क्रीपर जीन फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स, एंड दिस इंडिविजुअल विल डाई इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज. मतलब एग्स का इंक्यूबेशन जब चलते रहेगा तो इंक्यूबेशन एज में ही, एक स्टेज में ही ये इंडिविजुअल मर जाएगा. ये दो इंडिविजुअल्स में जैसे पेरेंट है वैसे है, एक क्रीपर जीन है और एक नॉर्मल जीन है. तो ये डिफॉर्म मुर्गियां होंगी, डिफॉर्म क्रीपर मुर्गियां, मतलब इनमें डिफॉर्म लेग्स एंड विंग्स रहेंगी, जिंदा रहेंगी बट डिफॉर्म कंडीशन में. एंड दिस इज बोथ द नॉर्मल जीन्स, बोथ नॉर्मल जीन्स. ये एक इंडिविजुअल ऐसा है तो ये नॉर्मल रहेगा, नॉर्मल चिकन के सरीका रहेगा. नाउ रेसेसिव लीथल जीन्स इन ह्यूमन. रेसेसिव लीथल जीन में एग्जाम्पल 1 टाइसैच डिसीज. टाइसैच डिसीज एमेयूरेटिक मतलब पार्शियल इडियोसी एंड विजन लॉस, इसमें ये होता है पार्शियल इडियोसी एंड विजन लॉस. इट इज कॉज्ड बाय एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. तो हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड होता है, इसकी वजह से ब्रेन का डिजेनरेशन होते रहता है. The first symptoms of the disease to lose eyesight between the age of 7 years. There is a degeneration of nerve cells, loss of body coordination. Death resulted at the age of 7 to 9 years. मतलब 7-8 साल 9 साल तक यही ये बच्चा जिंदा रहेगा, उसके बाद में इसकी डेथ हो जाएगी. Why? ये क्यों होगा? तो हमारा जब जीन वो नॉर्मल है तो नॉर्मल कंडीशन में एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है, उस एंजाइम का नाम है N-acetyl हेक्सोसैमिनिडेज. N-acetyl हेक्सोसैमिनिडेज जब नॉर्मल होता है तो ये प्रोटीन जो है, ये लिपिड जो है ब्रेन में एक्यूमुलेट हुआ, इसको ब्रेक डाउन करता है. मगर अगर ये म्यूटेटेड जीन हो गया तो ये एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होगा. तो एबनॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम N-acetyl हेक्सोसैमिनिडेज, abnormal production of this enzyme, and this enzyme will not break the terminal hexosaminase from the brain lipid, but the defective enzyme cannot. This causes accumulation of lipid in brain cells leading to cerebral degeneration. तो ये एंजाइम नहीं, नॉर्मल एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होने की वजह से ये प्रॉब्लम होगा. Again here the cross is shown as usual, you can see this. And last page is this example 2, congenital ichthyosis. Congenital means by birth, by birth ichthyosis. Ichthyo means fish, fish को बोलते हैं इक्तियो. फिश कैसी होती है? स्केली होती है, उसके ऊपर स्केल्स होते हैं, फिश के ऊपर स्केल्स होते हैं. तो इस बच्चे में जो स्किन रहेंगी वो हार्ड, ड्राई
रफ स्किली टाइप रहेंगी, जिसमें कट्स होंगे, फिशर्स होंगे, जिसमें से ब्लड पस बहते रहेगा। ये इस डिसीज को बोलते हैं कंजेनाइटल इक्थियोसिस। Children with this disease having dry and hard skin with deep fissures down to the subcutaneous tissue. The fissures leads to bleeding, infection and finally death. Here again the cross is shown. And last example, sickle cell anemia. This we have already discussed sickle very well in sickle cell anemia. This recessive condition, hemoglobin A, hemoglobin S, this one individual is a recessive lethal condition and he will be killed. So this is all about the topic lethal genes, concept and consequences. Okay, thank you.